सर साइकोलॉजी टेस्ट में कैंडिडेट्स की असली पर्सनैलिटी कैसे एक्सपोज होती है? द वे ही द कैंडिडेट रिस्पॉन्ड्स, किस तरीके से वो अपने कैंडिडेट अपने जो उसके रिएक्शंस हैं, उसके जो स्टोरीज लिखने का तरीका है, किस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है. बिकॉज सी इट्स अ प्रोजेक्टिव टेक्निक. हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, हाउ ऑनेस्टली यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, हाउ सिंसियरली यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, इट डिपेंड्स अपॉन दैट. सर आपके करियर में जब रिकमेंडेशन करते हो तो अभी तक का सबसे ज़्यादा टफेस्ट केस कौन सा था? Well, there have been some cases wherein one actually got stuck. I had to go through the dossier 4 to 5 times, multiple times. So I had to spend almost 1.5 to 2 hours for that dossier extra to come to the final conclusion whether should I clear this candidate or not. So that was a candidate who was a repeater candidate. The majority part of his reactions, his approach to the stimulus was coming fine. It was above average. He was giving workable solutions. But there was a couple of instances where I could sense that somewhere he is becoming casual. So that was one thing that was holding me back. So that one candidate, I cleared him. However, when the conference took place, I brought this point out in the conference. The candidate was cleared by the GTO also and by the interviewing officer also. So I had also cleared it initially, but I had brought out this fact and I discussed in the conference regarding his casualness that I could sense somewhere. So the interviewing officer also felt that yes, we can further probe this candidate by giving him a couple of situation reaction tests in the conference itself. So over there, when we asked him, he came out clean. I mean, the way he answered the SRTs that were projected to him, he was confident. That element of casualness का जो हमारे अंदर doubt था, वो remove हो गया वहां से. That was the candidate that we cleared. So that was one time जब मेरे को वो 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़े उस कैंडिडेट के डोजियर पे. But then it was a learning experience for me as well. ओके सर, जैसे आईओ, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियंस कभी कभार अलग भी होते होंगे, तो उस केस में आप लोग कैसे डील करते हो? बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिविएशन तो नहीं होता, but at times difference of opinion is there. The reason behind it is that these are 3 techniques. The interviewing technique is a technique जहां पर आप फेस टू फेस बंदे से बातचीत करते हैं और उससे आप अपना असेसमेंट करते हैं. The GTO is a more of a technique जहां पर it's a performance technique when the candidate comes and performs, and then that's how the GTO comes to a conclusion. And when it comes to the psych technique, it's a projective technique. We don't even see the candidate, we just read the dossier and then make the assessment. तो तीनों टेक्निक्स डिफरेंट है. हर टीम टेक्निक का एक अलग तरीका है. बेसिकली एक इंसान को देखने के अलग अलग नजरिए है. कोई मुझे यहां से देखेगा, कोई यहां से देखेगा, कोई यहां से देखेगा. सो इट्स द वे हाउ यू लुक एट द पर्सन. सो इन तीनों टेक्निक्स की तरीका अलग अलग है. सो किसी टेक्निक में द कैंडिडेट इज एबल टू परफॉर्म वेल, एंड बिकॉज सारी 15 OLQs जो होती हैं वो हर टेक्निक में निकल के नहीं आती. कुछ टेक्निक, कुछ OLQs जो होती हैं वो साइड टेक्निक में बड़े अच्छे से उभर के आती हैं. कुछ OLQs जो होती है GTO अच्छे से पकड़ता है. कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसके अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर अच्छे से पकड़ पाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट. So depending upon that, the certain candidate might have been cleared by the GTO or by the interviewing officer, but may have not been cleared by the psychologist because उसको वो नहीं समझ में आया candidate, because the candidate could not perform well in that particular test. So it's that variation is there. So that is why there are 3 people who are assessing the candidate. So just because one has not cleared the candidate and others 2 have cleared the candidate does not make that the system is wrong. This is the beauty of the system. ओके सर, ऐसी कोई हैबिट बताइए जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा मिस करते हैं लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हैबिट है. Well, अगर मैं एक हैबिट की बात करूं तो ऑनेस्टी की बात करूंगा. हाउ ऑनेस्ट द कैंडिडेट इज, हाउ मच full of conviction that candidate is, right? So
अगर कैंडिडेट अपना ट्रू सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट इज द समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन सेट ऑफ वीकनेसेस. हर किसी में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है. सो अनलेस वी ट्राई टू हाइड देम, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. Acknowledging your own weaknesses and shortcomings, that is more important. सर ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक है जो ज्यादातर हर कैंडिडेट करता है? जैसे मैंने पहले बताया, अपना ट्रू सेल्फ ना रिवील करना, अपने आप को कंसील करके रखना, एक मास्क पहन के रखना और अपने फेक आप इमेज को दिखाना. एक फेक इमेज दिखाना. यस सर दो टर्म्स होती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और एक नर्वसनेस. दोनों में से ज्यादा क्या डेंजरस है? बोथ आर नॉट गुड. ना तो ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है, ना फिर नर्वसनेस होना ठीक है. बिकॉज अगर लड़ाई के मैदान की हम बात करेंगे तो वहां पर ना तो डरा हुआ बंदा चलेगा, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट चलेगा. बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट होगा, गलत डिसीजंस लेगा, एंड दैट विल बी दैट्स गोइंग टू जेपरडाइज एवरीबॉडीज लाइफ. सो दोनों ही क्वालिटीज ठीक नहीं है. वी नीड अ बैलेंस्ड पर्सन, अ बैलेंस्ड पर्सन who's got a balanced mindset and approach in life. सर बैलेंस्ड माइंडसेट क्या होता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा. बैलेंस माइंडसेट अगर हम बात करें, द वन हु थिंक्स रैशनली, हु थिंक्स प्रैक्टिकली. जहां पर उसको अग्रेशन दिखाने की जरूरत है वो अग्रेशन भी दिखाए, जहां पर उसको डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है वो डिप्लोमेटिकली हैंडल करे. सो अ प्रैक्टिकल पर्सन, अ सेंसिबल पर्सन who's got good knowledge and who is ready to work hard in life. So that is what a balanced person is.